seek after MCQ 3, right? Yes, ma'am. Okay. Aham Brahmasmi and Jivan ki seek. Ma'am, you asked Ma'am, we total. complete. Complete I asked. Ma'am, we Complete I asked. completed before MCQ, but these chapters was not in MCQ. Okay, will be there in MCQ 4. Okay, ma'am. Okay. Then total chapters name Azadi ka Mahaparv, मोहन प्रजापति प्रजापति, नमस्ते Namaste, एक बूंद एक बूंद, मुस्कुराहट जीवन की इसकी मुस्कुराहट प्रदेश थाईलैंड, जीवन की सीख, then Aham Brahmasmi. Then what about the Lekhan part? Vigyapal Lekhan, Suchana सूचना लेखन Samvad Lekhan. Samvad Lekhan. Samvad Lekhan, Suchana Lekhan and Vigyapal Lekhan, right? Vigyapal Lekhan mane advertisement. Suchana Lekhan mane notice and Samvad Lekhan mane conversation, right? Yes. Then what about our grammar part? Starting. I mean June or July we finish. Adjectives. Visheshan. Only Visheshan. Yes. Only Visheshan. No, one more. Just think. Was there one more to? Just think. pronouns Pronoun. Shabd vichar. Shabda vichar. Yes. Shabda vichar. One is Shabda vichar. Tatsam shabda kya hai? and that English शब्द विचार Shabda vichar. Yes. Shabda vichar. One is Shabda vichar and second one is Visheshan. Visheshan. Yes. Shabda vichar, Visheshan and grammar part. And Lekhan part means Samvad Lekhan, Suchana Lekhan. Vigyapal Lekhan. And the chapters total. How many chapters we finished, Bichu? Can you count? Azadi ka Mahapar. Ma'am, 9 8 or 9? 9 right आजादी का महापर्व मोहन प्रजापति नमस्ते एक बूंद Ma'am, मुस्कुराहट nine. yes ma'am जीवन Nine. की how 9 जीवन की Ma'am, 8. no ma'am 8 only Aham Brahmasmi. Total 8 chapters. But in total we have 10 chapters. Okay, 2 more chapters are there. Only 2 more. so for essay to 10 chapters will be there No. Essay Oh, and total the year. total this year. Okay, total this year 3 Lekhan part, 2 grammar portion and 10 chapters. 2 more chapters are there pending. Ma'am, but that conversation we didn't discuss, right? Wait. Yes, ma'am. Yes. Yes, Adi. yes ma'am conversation we discussed Essay to how much chapters? Essay to exam maybe will be there. देखिए हमारा लेखन पार्ट एक और बात देखना चाहिए बच्चों. लेखन पार्ट इस मैंने कहा था ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले व्हाट इज इट संवाद लेखन we didn't discuss. Anand, what is that? No, ma'am. We have discussed it. We have yes discussed. ma'am we discussed Okay, I think Anand was absent. ना Anand? Yes, ma'am, I think. Okay. Then संवाद लेखन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में Conversation writing. Conversation writing. But I didn't send the notes, I think. संवाद लेखन. notes you didn't send ma'am Ma'am, writing portion you didn't send the notes. लेखन के लिए notes की Oh, but you told. no need You to send copy that it. notice. Yes. Only the notice and the Vigyapal Lekhan I sent, right? Yes, ma'am. yes ma'am together Yes. So Ma'am, but संवाद you लेखन. didn't send the rules and all. Yes. We'll send it. Anyway, you copy it. We'll send it. Okay. ma'am. बच्चों हमारे लिए संवाद लेखन अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? Conversation writing. राइटिंग कहते हैं. देखिए संवाद लेखन एक और बात देखिए बच्चों. संवाद का अर्थ है क्या है? बातचीत. संवाद का अर्थ है बातचीत माने क्या है? speaking बातें conversation करना, टॉकिंग या बातें करना, दूसरों से हम बातें करना, वो है संवाद लेखन या संवाद. ये शब्द किससे बना है? सम प्लस वाद से
बना है संवाद, सम प्लस वाद से बना है संवाद शब्द। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, संवाद लेखन का क्या है, परिभाषा है, अंग्रेजी में हम इसे डेफिनेशन कहते हैं। ओके, संवाद लेखन का डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत क्या है, कॉन्वर्सेशन राइटिंग इन इंग्लिश में, इंग्लिश में गए तो The talk between two or more people. या ओनली दैट, टॉकिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, वो है संवाद, संवाद का परिभाषा। देन फोर्थ पॉइंट, संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। वन मोर वर्ड इज द, क्या है, वार्तालाप, एक सेकेंड वर्ड फॉर संवाद, संवाद को, लेकिन हमारा लेखन एरिया में हम संवाद संवाद इस प्रकार का वर्ड यूज करते हैं। वार्तालाप का प्रयोग भी है, कॉन्वर्सेशन, संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। तो एक और बात देखिए बच्चों, वो सेम पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संवाद का अर्थ है बातचीत, ये शब्द सम प्लस वाद से बना है, दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं, संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। एनी डाउट, प्लीज रीड बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए। Ma'am, that fourth point, can you repeat? हाँ या श्योर, संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं, मीन्स क्या है, संवाद को हाँ, संवाद ऑल्सो नोन एज वार्तालाप, मीन्स संवाद का एक सेकंड वर्ड है, एक सेकंड शब्द है वार्तालाप, संवाद और वार्तालाप सेम मीनिंग ओनली, कॉन्वर्सेशन। ओके, बातचीत ऑल्सो, बातचीत ऑल्सो, बातचीत माने टॉक, दूसरों से बातें करना। ओके, एक और बात देखिए, संवाद का अर्थ है बातचीत, बातचीत माने बातें करना, हम दूसरों से बातें करना। देन ये शब्द कहाँ से बना है और किससे बना है, सम प्लस वाद। देन क्या है इसका डेफिनेशन या परिभाषा, दो या दो वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। देन संवाद को हम क्या भी कहते हैं, वार्तालाप। नाउ संवाद का अर्थ क्या है, बातचीत। देन संवाद को हम क्या भी कहते हैं, वार्तालाप है। और ये संवाद किससे बना है, सम प्लस वाद। देन व्हाट इज द परिभाषा ऑफ संवाद, दो या अधिक लोगों के होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला वार्तालाप, वो है संवाद। क्लियर? Yes ma'am. नेक्स्ट सूचना लेखन का, सॉरी सूचना लेखन नहीं, संवाद लेखन का एक एग्जाम्पल के पहले किस प्रकार लिखना चाहिए एक संवाद लेखन, वो भी हमने देखा था लास्ट वन डे। ओके, संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सब, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा किस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आऊंगा, एक संवाद राइट संवाद, एक वार्तालाप लिखिए, एक संवाद लिखिए। सो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देन व्हाई इस प्रकार मैंने नोट कर, we have follow this rules, यस, फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो इसलिए दिस पॉइंट्स आपके मन में लिखिए। पहला पॉइंट, संवाद विषय से संबंधित हो। आपका that day you gave mobile phone. यस, तो आपको यस, मोबाइल फोन का दोष और लाभ, राइट? Yes ma'am. यस, तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए है हमारा क्वेश्चन है मोबाइल फोन का दोष और लाभ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के इसके बारे में दो फ्रेंड्स के बीच में वार्तालाप, इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा कॉन्वर्सेशन किसके संबंधित होना चाहिए, What is the meaning of samvad? Samvad means it's conversation. Okay ma'am. Then the second point is
संवाद में क्रमबद्धता होनी चाहिए. क्रमबद्धता माने एक ऑर्डर. Order. संवाद में एक ऑर्डर होनी चाहिए. मीन्स हमारा एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस लिखते समय एक कनेक्शन होना चाहिए. राइट? ओके. Yes. थर्ड पॉइंट, पात्रों के या पात्रों मीन्स हु इज स्पीकिंग, द स्पीकर. ओके. पात्रों के हाव भाव. क्या है हाव भाव? Feelings. Feelings, face Expression. expressions and all. Feelings also, Gauri. Feelings also. Angry, gushy and all. Okay. पात्रों के हाव भाव कोष्टक में लिखनी चाहिए. कोष्टक माने Brackets. ब्रैकेट में लिखनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट वन, भाषा सरल होनी चाहिए. It should be simple. Our language. language easy. देखिए बच्चों, हम एक व्यक्ति से हम बातें करते हैं, हम टॉकिंग है, तो उसी समय हम डिफिकल्ट वर्ड का यूज करते हैं? नो. सिंपल सेंटेंस वी आर कम्युनिकेटिंग, राइट? तो सरल भाषा में होनी चाहिए. हमेशा सरल भाषा में लिखनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए. इस प्रकार है ना, इंग्लिश में भी इस प्रकार. सबसे पहले हु इज स्पीकिंग, राम, देन 2 डॉट्स, हाइफन, Colon. डायलॉग, कॉलन. ओके. इस प्रकार हु इज स्पीकिंग, द स्पीकर का नाम और दैट व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट एंड द इम्पोर्टेंट वन, विराम चिन्हों का प्रयोग. क्या है विराम चिन्ह? Punctuation marks. Punctuation marks. Punctuation. पंक्चुएशन मार्क्स. तो पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना चाहिए. First point, can you repeat? हाँ या श्योर. संवाद विषय से संबंधित हो, मीन्स हमारा टॉपिक क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस लिखना चाहिए कॉन्वर्सेशन में. Okay, ma'am. हाँ, ओनली दैट. तो एक और बात है कि संवाद विषय से संबंधित हो. देन सेकंड पॉइंट, मनमेरी क्या विलास, क्रमबद्धता होनी चाहिए. देन पात्रों के हाव भाव या फेस एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, एवरीथिंग कोष्टक में या ब्रैकेट में लिखनी चाहिए. देन फोर्थ पॉइंट इज अबाउट लैंग्वेज, भाषा सरल होनी चाहिए. देन फिफ्थ वन इज संवाद, द स्पीकर का नाम, बोलने वाले का नाम संवादों के आगे, आगे माने आगे, Friend. First. इन फ्रंट, First. फर्स्ट या फ्रंट में लिखनी चाहिए. देन सिक्स्थ वन इज क्या है, पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्हों का प्रयोग. प्रयोग करना बच्चों चाहिए. एक बार रीड करें, कोई डाउट है तो पूछिए. एक संवाद लेखन लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैं कहना ये बाय हार्ट. सॉरी, प्लीज म्यूट योर ऑडियो बच्चों. हाँ, First, in this one, first sentence, can you say the meaning of it? प्लीज विल चेक. संवाद विषय से, विषय माने टॉपिक, इट शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक. मैम एक टॉपिक रिलेटेड. मीन्स हमको संवाद या कॉन्वर्सेशन लिखने के लिए क्वेश्चन वी विल गेट, राइट? यस मैम. सो should क्वेश्चन be से related. रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड टू, रिलेट होना चाहिए. ओनली दैट. परस्पर संबंध होने चाहिए, विषय से, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. Ma'am, what was the meaning of Kramabadha? ऑर्डर, ऑर्डर. Okay. कोई डाउट है तो पूछिए. मैम संवाद लेखन need to be in order, right? या क्रमबद्धता में लिखनी चाहिए, क्रमबद्धता. एक संवाद लेखन लिखते समय 20 पॉइंट्स आपके मन में रखिए. Okay. Any doubt? Can you read the third one? थर्ड वन, यस. पात्रों के हाव भाव. हाव भाव माने फीलिंग्स, फेस एक्सप्रेशंस एंड लाइक हैप्पी, खुशी से, एंग्री से, लाइक इस प्रकार हाव भाव कोष्टक में लिखनी चाहिए. कोष्टक माने ब्रैकेट. फॉर एग्जांपल हियर आई डिड इन एग्जांपल में नहीं मींस पिता. एक्सप्रेशंस एंड या ओनली दैट. मींस पिता, देन ब्रैकेट में क्रोध से, खुशी से. Okay, then you can write the dialogue. Clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No ma'am. So एक संवाद लेकर लिखते हैं 5 mark out 5 out of 5 you will get, right? Yes ma'am. Yes. Okay.
Then we can move to the second one. Second one माने हमारा first one हम शुरू किया था ना, हमारा विज्ञापन लेखन से हमने last year also started. विज्ञापन लेखन क्या है इसका अंग्रेजी शब्द? Advertisement writing. क्या है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग या एक विज्ञापन लेखन? विज्ञापन का अर्थ क्या है? Should be attractive. सबसे पहले विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञापन माने क्या? सूचना प्रदान We have to सूचना प्रदान advertise. सूचना प्रदान करना. क्या है सूचना प्रदान करना? highlight the information. Not highlight बेटा, प्रदान करना माने give some information. सूचना प्रदान करना में हमारा सूचना just convey करना और प्रदान करना. Okay. देन एक अच्छे विज्ञापन लेखन के कुछ गुण होनी चाहिए, लाइक संवाद लेखन के समान. फर्स्ट पॉइंट गौरी ने बताया ना, क्या है? आकर्षक होने चाहिए. विज्ञापन आकर्षक. क्या है आकर्षक? अट्रैक्टिव होना चाहिए. देन सेकंड पॉइंट इज अधिक ज्ञान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए. विज्ञापित वस्तु माने प्रोडक्ट. We should write more about the product. दैट प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहिए. और थर्ड पॉइंट, जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम, दैट प्रोडक्ट का नाम. यदि हमारा विज्ञापित We have to say again and again. यस, वो वस्तु का नाम या प्रोडक्ट का We नाम, should repeat the name of the product. प्रोडक्ट का नाम रिपीट करना चाहिए. फोर्थ वन, गुणों का उल्लेख करना चाहिए. द प्रोडक्ट का क्या क्या गुण है, क्या क्या एडवांटेज है, Benefits, advantages. किस प्रकार लिखना चाहिए? Points. पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स. देन लास्ट वन, शीर्षक आकर्षक. शीर्षक वो हेडिंग. यदि हमारा क्वेश्चन में Heading should be attractive. हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव. मे बी आपको आपका क्वेश्चन में क्या है शीर्षक मिलेगा, तो we should design it and that's your choice, no problem. विज्ञापन लेकर ना, you can decide. okay. Then the last thing, fifth point, सरल वाक्य का प्रयोग. सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस में लाइक संवाद लेख. ओके. देन मैंने कहा था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञापन लेबल लिखते समय कुछ क्या है, स्लोगन का प्रयोग. कम स्लोगन आपके मन में रखिए. क्या क्या है? अवसर न चूके. क्या है इसका मीनिंग? Don't miss this opportunity. Don't miss the opportunity. We should write it in the last print. At last, middle. At last, middle. Okay. Okay. Then विज्ञापन लिखने के लिए very one important, एक बॉक्स के अंदर लिखनी चाहिए. That's very very important. एक विज्ञापन लेखन हमेशा किसका? संवाद लेखन. संवाद लेखन no need. लेकिन सूचना लेखन बॉक्स इज कंपल्सरी. ओके. संवाद लेखन के लिए नो नीड. सेकंड वन, स्टॉक सीमित है, अनलिमिटेड. Stock is limited. सुनहरा अवसर, golden अपॉर्चुनिटी. बम्पर सेल. क्या है? big sale. बिग सेल, बम्पर सेल, बिग सेल. Ma'am, third one's meaning. come first and गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. buy first. come पहले first आओ, and पहले come forward and buy. बाय फर्स्ट. पहले आओ, पहले पाओ. आज ही खरीदे. buy today. Today it will be over. yes. जल्दी कीजिए. Come fast. Do it fast. Make it fast. Okay. So these slogans आपके मन में रखिए. एंड आपका क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट के Fourth one's meaning what? Bumper. बम्पर सेल, Big sale. बम्पर ऑफर, बम्पर सेल, बिग सेल ऑफर, इस प्रकार ना. अंग्रेजी ओनली, इंग्लिश ओनली. बम्पर सेल, सेल, SALE, सेल ना, बम्पर सेल. ओके. तो एक विज्ञापन लेखन लिखते समय द मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एक बॉक्स के अंदर लिखनी चाहिए. द विज्ञापन लेखन इट शुड बी Attractive. ओके. देन वन मोर, हमारा लेखन पार्ट में क्या है? सूचना लेखन. सूचना लेखन. सूचना लेखन अट्रैक्टिव होना आवश्यक है? No. formal. Yes, it's formal only. Yes. देखिए, एक नॉर्मल विधि में या फॉर्मल रूप में लिखनी चाहिए. सूचना लेख क्या है अंग्रेजी में?
Notice writing. Notice writing. किसी भी विषय पर, किसी, मैंने कहा था ना, ये सभी थिंग्स बायहर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली मन में रखिए. ओके, दीज पॉइंट्स एंड ऑल, सूचना लेखन एंड ऑल सिंपली मन में रखिए. ओनली दैट. किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय और समाज विशेष को सूचित करना सूचना लेखन. सिंपल सेंटेंस में क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था, किसी ऑफिस, हमारा स्कूल, कार्यालय, समाज, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हम क्या लिखते हैं? नोटिस. सूचना. ओनली दैट. सिंपल सेंटेंस में हम हमारा एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हम सूचना लिखते हैं, एक न्यू इंफॉर्मेशन. देन सूचना लिखने के लिए ऑल्सो एक क्या है, विधि है, एक रूल है. कुछ बातें आपके मन में रखना चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज, सूचना लेखन में क्या है, सर्वप्रथम मीन्स एट फर्स्ट विभाग का नाम, विच इज अ डिपार्टमेंट, मीन्स स्कूल है तो स्कूल, ऑफिस है तो ऑफिस, इसका नाम लिखा जाता है. हमारा स्कूल का नाम लिख रहे तो हमारा स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम एंड ऑल, मैंने कहा था ना, सिंपली क्या है, ABC स्कूल, इस प्रकार किसी एक अन्य स्कूल का नाम लिखिए. हमारा स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इज बोर्ड एग्जाम, राइट, 10th एंड. ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज, शीर्षक के नीचे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखना चाहिए? सूचना. कहा, लेफ्ट, राइट और मिडिल? मिडिल. यस. थर्ड पॉइंट, सूचना में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता. संबोधन माने giving an intro. सैल्यूटेशन. यस. Salutation. क्या है, प्रिय, रेस्पेक्टेड सर, इस प्रकार हम कहते हैं ना, महोदय, इस प्रकार Yes. हम हिंदी में कहते हैं ना, इसकी आवश्यकता नहीं है. सूचना. देन फोर्थ वन, सूचना समाप्त होने पर क्या क्या लिखनी चाहिए? यहाँ देखिए, हम कुछ करेक्शन है. यहाँ देखिए क्या क्या लिखनी चाहिए. सबसे पहले नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक. दिनांक. अंग्रेजी बताइए बच्चों. नाम माने Name. पदनाम माने Position. Designation. हस्ताक्षर माने Signature. दिनांक माने Date. मैंने कहा था ना, दिनांक, इस प्रकार दिनांक लिखनी चाहिए. बाकी सब ओनली नाम, डेसिग्नेशन एंड ओनली नाम. Who is writing and the writing person का designation. For example, if chairman is writing, Dr. Rajadev Karepadan, then chairman. And so we don't need to write naam, padinam and No need. Only dinang. Okay. Dinang you write, then one colon, hyphen, then date you write. Okay, then next We point. should write the Dinang also. Then only we should Dinang. put the colon. Yeah. Then next one. Fifth one. सूचना सीमित शब्दों में लिखना. क्या है सीमित शब्द? Limited words. लिमिटेड वर्ड्स में लिखना चाहिए सूचना लेख. बहुत सारे अनुच्छेद या पैराग्राफ राइटिंग के समान नहीं लिखनी चाहिए. सिंपल सेंटेंस में लिमिटेड वर्ड्स में लिखिए हमारा सूचना लेख. देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आई रोट हियर? मैक्सिमम 2 or 3. हाँ, मैक्सिमम आपका टेक्स्ट बुक में, आपका रफ बुक में लिखते समय 3 or 4 है ना. ओके, I'm here only one line. No, Which two one? lines. 2 lines. हाँ. 2 sentences. हाँ, 2 or 3 सेंटेंस. ओके, एक और बात देखिए, सूचना लेखन माने क्या है? एक न्यू इंफॉर्मेशन कन्वे करना, वो है सूचना लेखन. सूचना लेखन की विधि. सूचना लेखन में सर्वप्रथम विभाग का नाम लिखना चाहिए. शीर्षक के नीचे सूचना इस प्रकार लिखना है. देन सूचना में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता. देन समाप्त होने के बाद क्या है? बाई ओर, बाई माने लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले नाम, देन पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक. देन एट लास्ट पॉइंट है सूचना सीमित शब्दों में या लिमिटेड वर्ड्स में लिखनी. तो ओनली दिस मच हमारा लेखन पाठ. क्या क्या हमने देखा लेखन पाठ में?
हमारा लेखन Sujana Legan, Sujana Legan, Samvad Vikhyapan Legan, Legan, Vikhyapan Samvyapan Legan. Legan. विज्ञापन लेखन हमने देखा। देन हमारा ग्रामर पार्ट में हमने एक बार हाँ, शब्द विचार, शब्द विचार एंड विशेषण, विशेषण। देन हमारा चैप्टर 8 chapters, 8 chapters. How many chapters left? 2 chapters. Two more chapters. 2 more chapters. Okay. Bye, ma'am. We'll meet you. Okay. Send message. WhatsApp. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Ma'am. Bye.